तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो कुछ की टर्म्स हैं जो मुझे ये सेपरेबल स्पेसेस पढ़ाना है, सेपरेबिलिटी बेसिकली। तो सेपरेबिलिटी वाले टॉपिक में कुछ की टर्म्स हैं और कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं जैसे बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, ठीक है। तो इनको करने के लिए हम और ऐसा करें कि पहले कुछ की टर्म्स है जैसे डेंस सेट क्या होते हैं और नोवेयर डेंस सेट क्या होते हैं, इन की टर्म्स को समझते हैं, ठीक है। डेंस सेट कैसे डिफाइन करेंगे और इसके बाद इन सबको यूज करके फिर काउंटेबल तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसको यूज करके सेपरेबिलिटी के डेफिनेशन पे आएंगे, फिर फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल स्पेसेस क्या होता है। लेकिन डेंसनेस जो है ना, जो डेंस सेट की प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। कैसे यूज होता है, इवन कंप्यूटर साइंस वगैरह में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे जो मैं बार बार कहता था कि इवन इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के सबसेट ऐसे ढूंढे जा सकते हैं जिसमें रिप्रेजेंटेशन फाइनाइट हो, सो दैट आई विल कम इन केस ऑफ एलपी स्पेसेस, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो की टर्म्स है पहले वो हम लोग देखते हैं। तो और बहुत बेसिक है, मतलब आपको अब कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि ऑलरेडी आप ओपन सेट क्लोज सेट ये सब कुछ चेक करना जान चुके हो। तो मैं इस पे आने से पहले ये इन सब में सेपरेबिलिटी वगैरह के चैप्टर में इस बुक से देखेंगे तो यहाँ पे डेंस सेट और नोवेयर डेंस सेट, आई थिंक डेंस सेट शायद पहले रह गया। देखिए ये दोनों की टर्म समझना जरूरी है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लेकर पहले समझते हैं। यस, तो आप लोग इसे रीड करें उसके बाद मैं समझाता हूँ डेंस सेट से क्या समझते हैं। So look at the definition about dense set. So you can see that what we mean by dense set. A non-empty subset A of a metric space X is said to be dense or everywhere dense in X if A closure is equal to X. A closure कैसे निकालते हैं हमें मालूम है ना, A closure is equal to X. A closure is given by A union A dash, that is derived set in A or all of its limit point by taking union of this one. So if any subset A of X is said to be dense if its closure is equal to whole space X. Or in other words, you can say that if every point of X is a limit point of A. See, there are different interpretation. I mean, in terms of limit, you can say that if A closure equal to X, then every point of X is a limit point of A. In terms of open set, you can also express this definition, and that will be widely used. Because why? See, in other words, a set A is said to be dense in X if for given any point of the space, I mean of the metric space, there exists sequence of points of A that converges to X. I mean, suppose this one is your metric space and there is some subset A. Then from this, then for every X, I mean whatever X you are choosing, either it is outside the set A or within the set A, you can always get some sequence of points from the set A which converges to this X, How? Let us see it one by one. So before giving examples of dense set, we provide a criteria for being dense. So there are 3-4 equivalent definition. Let us first go through the statement of those theorem, and then we will do the proof after understanding some examples. So suppose A be a non-empty subset of a metric space, the following statements are equivalent. I mean, you can express, see, this definition we have seen that if A closure equal to X, then A is said to be dense in X. So this is also equivalent to say for every X belonging to X, if the distance, I mean row of X from A equal to 0, this distance of a point, of this point from the set for, if this is equal to 0, then this is also equivalent definition of that A is dense in X. Or you can say that if A has a non-empty intersection
with every non-empty open subset of X. But this definition will be used in everywhere. I mean, this definition in terms of open set, that intersection of every non-open subset, if A is dense subset of X, if A is dense subset of X, then whatever open set, whatever non-empty open set we will consider of X, its intersection with A is always non-empty. Its intersection with A is always non-empty. So these three are equivalent definition. These are equivalent. I mean, in terms of if metric is given, then we can express this one. We know how to define rho of X is equal to infimum of compute all distances between X and Y, where Y belongs to A, and then take infimum of this set. And if this is 0, then we will say that rho of X is equal to 0. So whenever say if A is dense in X, then this will always hold. So we will come to its proof later on, but remember that this definition will not work in topological spaces, but this will work. Even you can also say that A has we can also interpret this definition as like this. Say A is dense in X. Let me write here. Say A is dense in X. I mean, see, if intersection with every non-open subset of X with A is non-empty, and we know that every open set is the union of balls. So you can also express this definition in terms of open balls. So we can also say that A is dense in X if A closure is equal to X, or say that A is dense in X if every open ball in A intersect A, or you can say that A is dense in X is dense in X if every open ball in X, if every open ball in X intersect A. Every open ball in A intersected, because we are trying to take the balls from A, or no, it's okay. And or you can also express it in this way, that every non-empty open set intersect A. Every non-empty open set A intersect A. Just wait. हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. अच्छा जी सर. ठीक है, देखो आप कैसे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे. तो इनको इन चीज़ों को समझने के लिए ना मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूँ, तो उससे आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा. तो पहले मैंने स्टेटमेंट तो लिख दिया, इंटरप्रेट कर दिया. आई मीन इस स्टेटमेंट को हम बॉल्स के टर्म में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हर ओपन बॉल क्या होता है, ओपन सेट से बना, हर एक ओपन सेट ओपन बॉल से बना होता है. तो आप यहाँ पे लेकिन नॉन एम्प्टी लेना जरूरी है, क्योंकि अगर सेट खुद एम्प्टी हो गया ओपन सेट, तो उसका इंटरसेक्शन तो किसी भी साथ एम्प्टी हो जाएगा, और एज पर डेफिनेशन इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए. इसीलिए यहाँ पे ये नॉन एम्प्टी वर्ड इंपॉर्टेंट है ना. ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल. देखो कुछ जो आप स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो पढ़ चुके हो. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, अगर आप देखो इसको, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स q इज डेंस इन द यूजुअल मेट्रिक स्पेस R. देखो q क्लोजर इक्वल टू R, मैं प्रूव कर चुका हूँ. q का देखो q क्लोजर कितना होगा, q क्लोजर बाय डेफिनेशन अगर देखो तो q यूनियन q डैश, आई मीन सेट q यूनियन इसका डेराइव्ड सेट, और डेराइव्ड सेट इसका क्या होता है R. इसका रेशनल भी लिमिट पॉइंट होते हैं, इरेशनल भी. ऑलरेडी मैं पीछे के लेक्चर्स में करा चुका हूँ, तो यहाँ मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा. आप पीछे लेक्चर के रियल एनालिसिस में भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, और आपको इसमें मैट्रिक स्पेस में भी स्टार्टिंग में कराया था कैसे इसका लिमिट पॉइंट होगा.
तो आप क्लियर कट एक तो हो गया ये बाय डेफिनेशन क्यू क्लोजर इज इक्वल टू आर। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन से देखना चाहो, देखो हमारा क्लेम क्या है कि क्यू क्लोजर इज इक्वल टू आर। अब अगर आप ओपन सेट के टर्म में डेफिनेशन में देखना चाहो तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है कि if a closure is equal to x, then whatever non empty open set we will consider, जो भी आप नॉन एम्प्टी ओपन सेट सबसेट कंसीडर करते हो उसका a के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है ना? चाहे किसी पॉइंट के राउंड आप ओपन सेट ले लो, किसी भी पॉइंट के राउंड ओपन सेट ले लो। तो अगर आप रियल लाइन पे देखो तो आप किसी भी पॉइंट आई मीन कोई भी आप x बिलोंगिंग टू r ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, उसके राउंड या तो आप ओपन बॉल्स ले लो या ओपन बॉल्स का यूनियन आई मीन ओपन सेट्स ले लो। तो इसमें देखो क्या होगा, रेशनल एज वेल एज इरेशनल होंगे। जब भी ये नॉन एम्प्टी होगा इसके अंदर क्या होंगे, रेशनल एज वेल एज इरेशनल। तो इनका इंटरसेक्शन इस तरह के हर एक ओपन सेट का इट्स इंटरसेक्शन विद क्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन एम्प्टी। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन एम्प्टी, क्योंकि इसके अंदर भी रेशनल्स होंगे, इसके अंदर भी रेशनल्स होंगे और क्यू के अंदर रेशनल। तो ऐसा हमेशा होगा जब भी आप नॉन एम्प्टी ओपन सेट लोगे, किसी भी पॉइंट को कंटेन करने वाला, इट मे बी यूनियन ऑफ बॉल्स, इट मे बी अ सिंगल बॉल। सो दिस डेफिनेशन इज ऑलवेज ट्रू। और इस डेफिनेशन का एडवांटेज ये कि देखो मेट्रिक स्पेस में तो आपको पहला डेफिनेशन वर्क करेगा, लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर बात करोगे तो इस डेफिनेशन का डिसएडवांटेज ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि टोपोलॉजी में कोई डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इफ योर टोपोलॉजी इज मेट्राइजेबल आई मीन induced from metric, then it's okay. Otherwise, but this definition will work everywhere, either you are working in topological space or its particular case in metric spaces, ठीक है? तो आप इस तरह करना देखो। और ये प्रूफ तीसरा भी डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो, ये भी होल्ड कर जाएगा। आप इन्फिमम लोगे तो ये भी इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है? तो आप ये जरा एग्जांपल पढ़ो। और वो जो कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन वाला बता रहा था ना कि एलपी का सब स्पेस ये क्यों लेते हैं, ये वो एग्जांपल देखो, इसको मैं रिफर कर रहा था। उस वक्त मैंने आपको कहा था क्यों ऐसे सब स्पेसेस का एप्लीकेशंस क्या है। तो ये कंप्यूटर साइंस, क्योंकि एलपी क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, आप मशीन्स की लिमिटेशंस होती है। मशीन्स को आप जब या ह्यूमन बीइंग सिर्फ फाइनाइट क्वांटिटीज डील करता है, थ्योरेटिकली एवरीथिंग इज ओके। तो वहां क्या होता है कि कोई क्या किसी इनफाइनाइट चीज का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मशीन की अपनी एक मेमोरी फाइनाइट होती है। और प्रिसीजन, आपको लिस्ट काउंट एरर वाला बताया था, प्रिसीजन एरर। उसकी वजह से हम जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो हमें कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना होता है फाइनाइट स्टेप पे। जैसे आपको बताया था पाई, पाई की वैल्यू, पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर होता है। लेकिन जब हमें मशीन पे इंप्लीमेंट करना, हमें कहीं ना कहीं उसे अप्रोक्सीमेट करना होता है। अप टू 4 डिजिट टर्म, 8 डिजिट टर्म, 12 डिजिट टर्म, जैसे मशीन की लिमिटेशन उसे ट्रंकेट करती है। सो सेम इज द स्पेस हियर। दिस एलपी स्पेस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, बट इट हैज सब स्पेस। देखो इसमें फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन है, आफ्टर n टर्म्स every member is zero and each ei is rational, so every member of this space can be approximated using this type of sequence and it has finite representation. तो अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर रिजल्ट देगा। so just go through this example and wait, after 2-3 minutes I will discuss.
एक मिनट जरा, ये कहाँ गए थे? हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये जो स्पेस है ना, हम लोगों ने एलपी स्पेस देखा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह ये ए प्लस आई बी, इसका ये सेट आप ले लें, ए इक्वल टू ए प्लस आई बी वेर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, जहाँ कोफिशिएंट रेशनल अगर हैं, सो यूजिंग दिस यू कैन शो दैट इट्स क्लोजर इज इक्वल टू होल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, होल कॉम्प्लेक्स नंबर। I mean every member of this complex number can be approximated by choosing sequence of this type where AB belongs to rational, है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एवरी रियल नंबर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय सीक्वेंस ऑफ रेशनल, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या कहता है, ये डेफिनेशन देखें कि हाँ, A is said to be dense in X if for any given point there exists a sequence of points of A, है ना, A से ऐसे points मिल जाएं, sequence of points from A which converges to this X. So in general I can interpret in this way that every real number will be limit point of the sequence of rational. Every real number will be limit point to some sequence of rational, ठीक है। तो आप ये डिफरेंट वे एक्सप्रेस करने का, तो हम ओपन सेट के टर्म में ये कह सकते हैं कि whatever open set if Q is dense in R, then whatever open set we will choose, whatever non-empty open set we will choose containing this X, then its intersection with the set of rational is always going to be non-empty, which is very trivial here, because see, whenever you will construct, it will always contain rational as well as irrational, and it's non-empty, rational and irrationals, and intersection with rationals is always going to be non-empty. Similarly, आप इन टपल्स ले लो तो ये सब प्रूफ, ठीक है। अभी फिलहाल एग्जांपल देख लो, ये सेम पैरेलल प्रूफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है क्योंकि एलपी स्पेसेस हमने पढ़ा था कि अंडर दिस वन इज अ मेट्रिक, और इसके और भी प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ किए थे कि ये स्पेस कंप्लीट स्पेस है एलपी, ठीक है। तो कंप्लीट स्पेस है, लेकिन ये देखो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबसेट है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ये यूज होता है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ एलपी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सीक्वेंस ऑफ दिस वन, है ना, सीक्वेंस ऑफ दिस टाइप, और कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय सीक्वेंस ऑफ दिस टाइप, और इन जनरल कैन से दैट दिस सेट इज डेंस सब स्पेस ऑफ एलपी। इसी को यूज करके एलपी के जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो कंप्यूटर साइंस में बेसिकली इस सबसेट को यूज करते हैं, ठीक है ना, इस सबसेट को यूज करते हैं। तो इसके प्रूफ पे बाद में आएगा, अभी मैं सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक एक करके इनके प्रूफ को देखेंगे। सेकंड क्या है कि पहले आपको एक आइडिया हो, जब भी जो कोई टॉपिक पढ़ा करो ना, क्या है आपको एक ओवरऑल आइडिया रखो, फिर एक एक प्रूफ को डिटेल में करते हैं, और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड, सेट PAB ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन AB विथ रेशनल कोएफिशिएंट इज डेंस इन CAB, that is every continuous function can be approximated by sequence of polynomials with rational coefficient, indeed this is the Weierstrass approximation theorem जो बहुत ज्यादा यूज होता है। हर continuous function को up to desired degree of approximation error, every continuous function can be approximated by sequence of polynomials up to desired accuracy or up to desired tolerance, इसी को कहते हैं Weierstrass approximation theorem। but remember this is under uniform norm, है ना, ये इन्फिनिटी नॉर्म के अंडर में ये रिजल्ट ट्रू है, इंटीग्रल नॉर्म में ये रिजल्ट ट्रू नहीं होता। सो हियर वी हैव इन्फिनिटी नॉर्म, सो अंडर इन्फिनिटी नॉर्म दिस इज व्हाट द फेमस Weierstrass approximation theorem, that every continuous function can be approximated with the sequence of polynomials। अच्छा, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन इजी होता है, तो जब कंप्यूटर वगैरह रिप्रेजेंटेशन के यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम्स वगैरह में, तो वहां पे क्योंकि फाइनाइट की लिमिटेशंस है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हर कंटिन्यूअस फंक्शन को किसी न किसी पॉलिनोमियल से रिप्लेस करके, और ऑलमोस्ट वही अप टू सम एरर इट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना, ठीक है। तो ये है, तो ये कैसे है करेंगे वो अभी प्रूफ पे इस पे आएंगे। अब मैं पहले कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, सेपरेबल स्पेस का मैं एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, सेपरेबल स्पेस किसे कहते हैं पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके एक करके डिस्कस करेंगे। अ मेट्रिक स्पेस X इज सेड टू बी सेपरेबल if there exists a countable dense set in X, मतलब एक तो dense भी और साथ में countable हो, if there exists at least one countable dense set, so those spaces are called separable space।
A metric space which is not separable is called inseparable. For example, R with usual metric is separable. Why? Because it has a countable dense subset Q. तो Q dense तो अभी हमने देखा और Q countable होता है. Already मैं previous कई lectures दे चुका हूँ इसको. So we will say that R is a separable space. Why? Because it has at least one dense countable subset. Dense plus countable. Dense plus countable. Similarly, set of complex number is also separable because you can always choose sequence of member subset of this type where it contains elements of a plus ib where coefficient a b are rationals. So we know that this one is dense, and since here we have countable choice, so again this set is going to be countable, and the same in general one can generalize it for Rn. Again we will see that this LP space is again separable because this set is, apart from the density, is also countable. It is also countable. So that proof is given here. I will discuss it in detail. ठीक है. तो ये similarly space CAB of is separable. क्यों separable है space CAB? Because it has a subset PAB. देखो every polynomial is continuous, but continuous function need not be polynomial. ठीक है ना? So PAB is subspace of CAB. PAB is subset of CAB. Equal with the infinity metric. यहाँ सब हालांकि ये सब स्पेस भी बना लेगा, बट यहाँ सबसेट सब स्पेस का सेंस कि PAB is a subset of CAB under this infinity restricted norm metric on this one. ठीक है. But if you choose a subset of all those polynomials whose coefficients are rationals, are rational, then again it is also going to be countable. ठीक है ना. जैसे मान लो आप ये ले लो an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus up to a naught. तो आप इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह दे सकते हो an minus 1 up to a naught, ऐसे दे सकते हो, where each n belongs to q. तो ये सबसेट हो जाएगा किसका? q क्रॉस q up to जितने भी टपल्स होंगे n plus 1. ठीक है ना. और ये क्या होता है? काउंटेबल. तो इसका कोई भी सबसेट क्या हो? काउंटेबल. इस तरह मैप डिफाइन करके आप इसे प्रूव कर सकते हो. ठीक है. तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको कैसे प्रूव करेंगे ये आपको ऑलरेडी नंबर थ्योरी के लेक्चर्स में भी, और मैंने इसमें सेट थ्योरी के लेक्चर्स में अभी आपको ये कराया गया है, और साथ में मैंने रियल की क्लास में भी कराया है. सो दैट हिंट आई हैव गिवन टू यू. क्योंकि टाइम है नहीं तो मैं हर चीज़ को यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा. मैंने हिंट दे दिया. इस तरह आप मैप चूज करके दिखा सकते हो. ओके. सो रिमेंबर that space of continuous function defined on closed interval AB is also separable. Why? Because it has at least one dense subset PAB as collection of all polynomials with rational coefficient. Now, when a discrete metric is also separable if and only if the set X is countable. Set X is itself countable. Why? See, in a discrete metric space, we know that every set is open as well as closed. So whatever subset you will choose, that is also going to be क्लोज्ड. आपको मालूम है कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में कई बार मैं पढ़ा चुका हूं कि इसके जितने भी सबसेट होते हैं वो सबके सब क्लोज होते हैं डिस्क्रीट मेट्रिक में. ठीक है. और क्लोज सेट अगर हो गया तो उसका क्लोजर तो सेम होगा. तो कौन सा ऐसा सबसेट होगा जिसका सबसेट होल एक्स आ जाए? सो स्पेस एक्स इटसेल्फ. इफ ए इज स्पेस एक्स इटसेल्फ देन ओनली इट्स क्लोजर इज इक्वल टू होल एक्स. इसका ओनली डेंस सबसेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज एक्स इटसेल्फ. अब काउंटेबल कब होगा? सो इट विल डिपेंड ऑन द x. इफ योर स्पेस इज इटसेल्फ काउंटेबल, सो इट इज गोइंग टू बी काउंटेबल डेंस सबसेट, एंड देन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज ओनली गोइंग टू बी सेपरेबल. ठीक है. तो ये मैंने करा दिया. एंड दिस वन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट L infinity space of all bounded sequences with the metric this submetric is not separable. ठीक है ना. इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई विल डिस्कस ऑल दिस वन बाय वन. ठीक है. अब पहले डेंस, मैं जो डेंस और पहले नोवेयर डेंस कराना चाह रहा हूं, पहले वो आप समझ लें, तब उसके बाद हम इन प्रूफ पे आएंगे. तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं. अच्छा, नोवेयर डेंस सेट के, अच्छा डेंस सेट को आप कुछ इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हो. जैसे डेंस सेट को क्या है कि डेंस सेट को अगर मैं, अच्छा नोवेयर डेंस सेट पे भी आते हैं, वेट करो. पहले डेंस सेट को थोड़ा सा मैं एक और रिप्रेजेंटेशन में बता दूं ताकि इसका पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए. और देखो, डेंस सेट्स.
So a subset D of X, actually this one I am referring from book of topology by topology of metric spaces by S. Kumaresan. So we know that a subset D of X of a metric space is dense in X if for any given epsilon greater than 0, or if for any given X belonging to X and R greater than 0, we have balls, intersection of balls with that set as non-empty. I mean non-empty intersection with every ball containing that X. तो यहाँ नॉन एम्प्टी इसलिए वर्ड नहीं लिखा क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है ना, तो वहां पे नहीं लिखते. लेकिन अगर आप ये नहीं बताओगे तो फिर आपको नॉन एम्प्टी लिखना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स एनी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन X मस्ट कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ D. ठीक है. और टोपोलॉजिकल स्पेस में इसी डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं? अ सबसेट, क्योंकि बॉल्स का कॉन्सेप्ट तो मेट्रिक स्पेस में होता है ना, मेट्रिक में, क्योंकि बॉल बाय डेफिनेशन किससे जनरेट होता है? मेट्रिक से. अगर बॉल्स की डेफिनेशन याद रखो तो क्या होता है? y बिलोंगिंग टू x सच दैट d ऑफ xy इज लेस देन r. तो मेट्रिक की हेल्प से हम क्या जनरेट करते हैं? बॉल. लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस में मेट्रिक से जनरेटेड जरूरी नहीं है, तो वहां पे ये डेफिनेशन वर्क नहीं करता. सो ये डेफिनेशन हर जगह वर्क करता है जो मैं नीचे लिख रहा हूँ. सबसेट d ऑफ x ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस is dense in X if for every non-empty open set U of X. इस बुक में मालूम है ना, ये नोटेशन इसके लिए लेते हैं. If every non-empty open set U of X, we have D intersection U as non-empty. That is U intersect D non-trivially. तो इसका सबसे अच्छा जो रियल लाइफ एग्जांपल इस बुक में बहुत अच्छा दे रखा है ना, that imagine a lake with an abundant supply of fish. Imagine a lake with an abundant supply of fish. Then when you throw a net, suppose however small, let us throw a net. Suppose this lake contains abundant supply of fish, and let us throw a net anywhere, however small. Then in every net you will always find some fish. So the net will trap a fish. We can say that the net will trap a fish, however small. The net will trap a fish, at least one fish. Then we say that fish is dense in the lake. Fish is dense in the lake. तो ये जो मतलब ये एग्जाम्पल समझाने के लिए है कि जो डेंस का कॉन्सेप्ट ना, बेसिकली जो लेमन वर्ड है डेंसिटी का, डेंस है मतलब बहुत ज्यादा होना, वहीं से उठाया गया है और उसको फिर मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया है. ठीक है ना. तो ये एक आइडिया लिया गया था. नाउ लेट अस कम टू सम examples on this one. देखो जैसे एक एग्जाम्पल है, give an open example of a proper open dense subset of R. Give an example of a proper open dense subset of R. R का कोई proper open dense subset बताओ. So you can consider any set of this type, R minus a finite set. Because if you consider any proper subset A of this type as a subset of R, then you can see that its closure is equal to whole R. ठीक है ना. ये क्लोजर इसका क्या होता है? होल आर. ऑलरेडी मैं पीछे करा चुका हूँ ये सब चीजें. आई मीन इट्स डेराइव्ड सेट इज बेसिकली होल आर. सो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश. सो इट इज ए यूनियन आर. सो इट इज गोइंग टू बी आर इटसेल्फ. तो आप देख सकते हो ये डेंस है. या यू कैन टेक दिस एग्जांपल, u इज इक्वल टू r माइनस z, r माइनस सेट ऑफ इंटीजर्स r माइनस z. सो
You can take another example as b is equal to r minus z as a subset of r. So again, you can see that if let me call 0, 1, 2, minus 1. So if you remove all these say integers, then you can say that every point of this space, see, you can see that p closer, I mean whatever, either you express in terms of this one open set. So whatever remaining point we will choose, I mean whatever point we will take from r minus z after deleting this z, whatever point x you will consider and take a open ball around this one, its intersection with this set b is always going to be non-empty. So that is very clear from the figure. So in this way, let us try to express in terms of see open set definition. Okay, so whatever open set you will consider or open ball you will consider around that x, wherever it's always its intersection with this set b is going to be non-empty. So trivially this set its closure is equal to whole r. So you can directly look in this way, or you can express in terms of limit point, that you can always find sequence from this set b which converges to real number, whatever real number you will choose. One can always construct at least one sequence from this set b which converges to that x. Similarly here, if you delete some point, so same definition is going to work. ठीक है ना? तो ये एक प्रॉपर ओपन डेंस सबसेट हमने कराया आर का. अच्छा, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, इस पे आप लोग सोचना, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा. Let us take S is equal to say n plus m root 2, n plus m root 2, where nm belongs to z. एक तो ये सेट ले लो as a subset of R and show that S closure is equal to R. एक तो ये हो गया first example, and second let us take T is equal to n plus m root 2, और यहाँ nm को ना एक काम करो, सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ले लो, ये सबसेट ऑफ R, एंड शो दैट T क्लोजर इज नॉट इक्वल टू R. ये दो बड़े अच्छे एग्जांपल है. हालांकि इनका प्रूफ ये इस बुक में पेज नंबर 52 पे बुक इनके कुमारसन सर के बुक में दे रखा है यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल. लेकिन एक आप अगर जनरल आइडिया रखो तो, अब क्योंकि टाइम नहीं है उस प्रूफ को डिस्कस करने, कभी मैं कंपटीशन क्लास में डिस्कस कर दूंगा. लेकिन ये दो सेट अक्सर पूछते हैं कि ये किस तरह डेंस होगा. आई मीन so just I am giving you here idea. See, if this set is dense in R, then every real number is a limit point of this set, every real number. So whatever real number you will choose, whatever x we will choose from R, one can always construct sequence from this set, I mean using members of this set which converges to this. So how you will construct that sequence? See here, nm belongs to z. So you can always construct members of this type. Say, I mean by see m can be positive, negative. So in this neighborhood, I can whatever neighborhood you will choose, one can always construct members of this type n plus m root 2 by varying n and m positive, negative. For example, suppose x is say 1001. Suppose x is 1001. So I can always construct members of this type, say 1000 plus root 2, 1000 plus root 2, 1001 minus say root 2. So you can construct a members of this sequence of this type which converges to this real number x. So this is the key idea, because nm can take nm comes from integer, so it can be positive, it can be negative. So by varying, you will always construct sequence of rational number, I mean sequence of the members of this type which converges to this x. But this will not happen in this case where nm belongs to n. So to discard this, you can see that the reason is that, suppose let us, can you construct a members converging to 1000 from this set? So look here, if we take n is equal to say 1000, so the number will be 1000 plus say let us take m equal to 1 minimum, it will be root 2, 1000 plus root 2, and so on. So you can see that the next number will be, see, if I take n equal to 1000, then 1000 plus root 2, and the next number will be, see, you cannot take 1000 minus root 2. One cannot choose, because nm comes from set of natural number.
So if I choose radius epsilon less than √2, then you can see that apart from this 1000, it is not going to intersect this set. I mean, you can choose the minimum from this 1000 and the 1000 plus √2, and the next will be 1001 plus √2 and so on. So if we consider a ball, and the previous to this will be 999 plus say √2, 999 plus √2. So 999 plus say 2 √2. So that will come after this one. So by taking the minimum of these two, one can always construct an open set whose intersection with the set is non-empty. I mean, apart from this, whose intersection with set T is non-empty apart from this 1000. So in this way, you can think of that none of the point is going to be limit point. None of the point is going to be limit point of this set. Whether X is from this set R or outside. I mean, whether X is from T or outside it. I mean, from T R. So in this way, so remember, because here we have the choices to vary n m. So whatever neighborhood you will choose around any X, one can always construct infinite members from this sequence in every neighborhood by varying n and m from Z. So this is the reason why every point is a limit point of R. So this is just an idea how to think of about this type of questions. और प्रूफ अगर देखोगे तो प्रूफ ऑलरेडी आपको पिजन होल प्रिंसिपल यूज करके पेज नंबर 52 पे दे रखा है, तो कभी मौका मिलेगा तो मैं बाद में समझा दूंगा, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है सोचने के लिए। तो आप इसको चाहे तो ओपन सेट के डेफिनेशन में टर्म में सोचो, या आई मीन क्या नाम है लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में सोचो, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिनका फ्री हो वो कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल दूंगा। अब आते हैं हम लोग नोवेयर डेंसिटी पे। थोड़ा सा मैं नोवेयर डेंसिटी के बारे में आपको आइडिया दे दूं, ताकि आज आप लोग पढ़ के इसको रखो, फिर कल से हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो नोवेयर डेंसिटी, अच्छा एक ये ना बहुत ट्रिवियल ऐसा लगता है कि जो डेंस नहीं है वो नोवेयर डेंस है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों डेफिनेशन अलग अलग है। So the notion of nowhere dense set is not the opposite of everywhere dense. ये मैंने पहले यहाँ मार्क आउट कर दिया, ठीक है ना। We will see some counter examples. तो dense set तो हम समझ गए। dense set simply कि if A is dense subset of X, then whatever open set, non-empty open set you will choose in X, every open set is non-empty open set is going to intersect A. इस डेफिनेशन को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे। और अगर मैट्रिक दे रखा हो तो रो ऑफ X इक्वल टू 0 ये शो कर दें, ठीक है ना। तो इन दो डेफिनेशन को हम यूज करेंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल्स नोवेयर डेंस सेट के। नोवेयर डेंस का डेफिनेशन क्या कहता है? एनी सबसेट ए ऑफ अ मेट्रिक स्पेस इज सेड टू बी नोवेयर डेंस। एक्चुअली नोवेयर डेंस को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेयर्स कैटेगरी थ्योरम को हम नोवेयर डेंस सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ योर थर्ड चैप्टर, बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, ठीक ना। कंप्लीट स्पेसेस प्रॉपर्टी यूज करके हम उसे लिंक करेंगे। सो सबसेट ए ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी नोवेयर डेंस इन एक्स इफ इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज एम्प्टी। देखो इंटीरियर of A closure is empty, that is A bar A closure contains no interior point. A closure contains no interior point, है ना। इंटीरियर इसका एम्प्टी हो गया, मतलब कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ। तो क्लोजर का इंटीरियर अगर एम्प्टी है तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? नोवेयर डेंस। नोवेयर डेंस तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। इन द यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर एनी फाइनाइट सेट इज नोवेयर डेंस। कोई भी फाइनाइट सेट क्या होता है? क्लोज्ड होता है। तो किसी भी फाइनाइट सेट, मान लो अगर A को लेते हो और ये अगर फाइनाइट है, सो वी नो दैट फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, है ना। फाइनाइट सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, ठीक है। ऑलरेडी मैं पीछे प्रूफ करा चुका हूँ कि फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि डेफिनेशन ही फेल कर जाएगा। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। और फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है? फाइनाइट। सो इंटरसेक्शन इज नोवेयर गोइंग टू बी इनफाइनाइट। तो उस डेफिनेशन को यूज करके आप इसे फेल कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनाइट सेट इज but and hence this is the reason why there is no point which is not in the set A,
और इन जनरल यू कैन से दैट इट हैज नो लिमिट पॉइंट। तो लिमिट, तो इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट का डिराइव्ड सेट क्या होता है? एम्प्टी, और एम्प्टी सेट हर सबसेट सेट का सबसेट होता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज क्लोज्ड, बिकॉज देयर इज नो लिमिट पॉइंट व्हिच इज आउटसाइड द सेट ए। देयर इज नो लिमिट पॉइंट व्हिच इज आउटसाइड द सेट ए। सो दिस इज द रीजन व्हाई एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। तो जो सेट क्लोज्ड होते हैं उनका क्लोजर क्या होता है? सेम सेट होता है। जो सेट क्लोज्ड होता है उनका क्लोजर क्या होता है? सेम सेट। ए का क्लोजर ये आ गया। अब हमें क्लोजर का इंटीरियर निकालना। क्लोजर के एज पर डेफिनेशन क्लोजर पहले निकालना, फिर उसका इंटीरियर निकालना। अगर इंटीरियर एम्प्टी आ जाता है तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? नोवेयर डेंस। अब ये बताओ कि अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जैसे x1 x2, और मान लो रियल नंबर का है xn विथ यूजुअल मेट्रिक है, चलो बना लो उसे, कहीं x1 है, ये x2 है, और इस तरह करते करते यहाँ सपोज xn और ऑर्डर्ड है, मान लो x1 लेस देन x2 xn। तो अब ये बताओ कि अगर इसका इंटीरियर कैसे निकालता? अगर इसका इंटीरियर नॉन एम्प्टी है तो जो भी आप x1 उठाओगे, जो भी आप x1 उठा रहे हो इस सेट ए से, है ना, जो भी इस पॉइंट का मेंबर उठा रहे हो, उसके अराउंड कम से कम एक इंटरवल होना चाहिए जो इस सेट ए के अंदर कंटेन हो। और इंटरवल में हमेशा कितने मेंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट को कंटेन करने वाला इंटरवल सेट फाइनाइट सेट में कंटेन हो नहीं सकता। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट्स इंटीरियर, नन ऑफ द पॉइंट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। क्योंकि इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर आप x बिलोंगिंग टू a इज एन इंटीरियर पॉइंट क्लेम करते हो, देखो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप डेफिनेशन अगर नहीं रिकॉल पीछे से करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर x a का इंटीरियर पॉइंट है, सो फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बॉल bxr, क्योंकि मेट्रिक में है, सो bxr सच दैट x बिलोंग्स टू bxr एंड दिस इज कंटेन टू a। अब कोई भी अगर ओपन बॉल लोगे अंडर यूजुअल मेट्रिक, ओपन बॉल क्या होता है? ओपन इंटरवल्स। बट ओपन इंटरवल्स में तो इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट हो गए और यहाँ पे फाइनाइट सेट आपका फाइनाइट। सो दिस कंटेनमेंट इज नॉट पॉसिबल, है ना, इन केस ऑफ दिस एग्जांपल नंबर 1। सो दिस इज द रीजन व्हाई एवरी फाइनाइट सेट इज नोवेयर डेंस। देखो समझते चलो, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, और स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत डिटेल में इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट सब कुछ समझा चुका हूँ। तो मैं यहाँ जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप इसका बेसिक पीछे मैं करा चुका हूँ। और क्योंकि बार बार होता क्या है कि रिवाइज करने से लेक्चर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता। सेकंड एग्जांपल, द सेट n एंड z आर नोवेयर डेंस इन R। क्यों? क्योंकि n का लिमिट पॉइंट क्या होता है? n डैश इक्वल टू 5 होता है। इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं था। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर देखो यहाँ 1 2 3, तो आप 1 के अराउंड एक ऐसे कट बना दो 2 से छोटा, तो इसका इंटरसेक्शन विद सेट n अदर देन 1 ऑलवेज क्या होगा? कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा ही नहीं। सो नन ऑफ द पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट। उसी तरह 2 से 1 1 का 3 डिस्टेंस मान के ये कट कर दो, so other than 2 this is not going to intersect set of natural number। so this is the reason that why none of the point is its limit point। तो इसका derived set क्या होगा? 5, and 5 subset of every set, so n is closed। n क्या होगा? closed set है, so its closure is equal to whole n itself। closed set का closure क्या होता है? same। this is the reason why n closure equal to n। again same reason why its interior is empty, same reason that we have 1 here, 2 3 and so on। and if 1 is an interior point, then around 1 there must be an open ball containing 1 which is contained into this set of natural number। लेकिन इसके अंदर तो और भी रियल नंबर आएंगे, but that cannot be contained into, that will not be member of set of natural number। so again none of the point is a interior point। तो ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया। so we will say that set of natural number, and same logic will work for set of integers। third is a very good example in the usual metric space R2। the set of points on a line is nowhere dense। देखो इस एग्जांपल, इसी वजह से मैं पीछे डायग्राम वाला जो बार बार चीजें आपको डिस्कस कर रहा था कि इन द यूजुअल मेट्रिक स्पेस R2 द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज नोवेयर डेंस। क्यों नहीं डेंस है? R2 में पहले बताओ ओपन बॉल्स क्या होता है? ओपन डिस्क। R2 में ओपन बॉल्स क्या होता है? ओपन डिस्क। चलो सपोज कि ये आपका R2 है, R क्रॉस R, ये इस प्लेन पेपर को ही ले सकते हो, R क्रॉस R। claim is that the set of points on a line, कोई भी लाइन ले लो, कोई जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास करिए कहीं से भी हो, कोई भी आप इसमें कोई लाइन लेते हो और इस पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स है उन सब का कलेक्शन एक सेट बनाते हो। सो दैट सेट इज नोवेयर डेंस। क्यों? होगा क्या कि पहले आप उस लाइन का क्लोजर देखो, उस लाइन का क्लोजर क्या होगा? उस लाइन का क्लोजर द सेट इटसेल्फ है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके बाहर, इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट लेते हो और उसको अगर आप लिमिट पॉइंट क्लेम करते हो, तो इससे परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉप करके इसका हाफ लेके ये बॉल बनाओगे ना, तो ओपन डिस्क बनाओगे, तो इसका इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी हो जाएगा। सो नन ऑफ द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सेट, I mean outside the line
इज गोइंग टू बी इट्स लिमिट पॉइंट। और अगर इस पॉइंट पे इसी सेट से उठाते हैं, आई मीन लाइन पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, इसके अराउंड ओपन डिस्क बनाते हो ओपन डिस्क, so its intersection is always going to be non-empty with this line. So you can say that every point lying on the line is going to be its limit point, is going to be its limit point. तो ए का क्लोजर क्या हुआ, ए यूनियन ए डैश, तो यहां पे आ गया ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इटसेल्फ, ये हो गया। अब एक क्लोजर आ गया। नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है कि दिस इज नोवेयर डेंस। नोवेयर डेंस मींस इट्स इंटीरियर इज एम्प्टी, इट्स इंटीरियर इज एम्प्टी। तो वो कैसे दिखाओगे, सेम रीजन। सी इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ दिस सेट इज, आई मीन द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, इफ दिस सेट इज इट हैज इंटीरियर पॉइंट्स, देन व्हाटएवर पॉइंट इंटीरियर में उसी सेट से पॉइंट लेते हैं। इफ यू आई मीन अराउंड एवरी पॉइंट व्हिच यू आर क्लेमिंग टू बी इट्स इंटीरियर पॉइंट, draw an open ball, I mean open disk here. Clearly this open disk will contain points other than the line, because our radius will be always strictly greater than 0, so it is going to contain points other than the line, and thus this points lying in this open disk cannot be contained into this line. ठीक है ना, ये open disk वाले point आप इस line में contain नहीं करा सकते। So this is the reason why I mean this a set of points on a line is nowhere dense। ठीक है, तो ये सी वाला भी तो देखो अब पीछे का अगर जिनको बेसिक क्लियर है, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, इन सब डेफिनेशन में कुछ भी नहीं रखा है, वरना आप हमेशा पढ़ते रह जाओगे, कोर्स ही नहीं कंप्लीट होगा और हमेशा कुछ चीज़ें नहीं लगेगी। तो पहले डेफिनेशन हमने देखा, उस डेफिनेशन पे कुछ एग्जाम्पल वर्कआउट करेंगे और फिर कुछ स्टैंडर्ड जो प्रूफ है उस पर चलेंगे। फोर्थ, in a discrete metric space the empty set is the only nowhere dense set। क्यों ऐसा हो रहा है कि discrete metric space में empty set ही है nowhere dense set। पहले ये बताओ, discrete metric space में every set is closed, तो हर सेट का क्लोजर itself होगा क्योंकि हर एक सेट क्लोज्ड है। so a closure is equal to a itself, a closure is equal to a। हर एक सेट क्लोज्ड भी होता है और हर एक सेट ओपन भी होता है। तो अब क्योंकि अगर ओपन है, I mean suppose A is non-empty, suppose A is non-empty, then since every set is closed, so its closure is equal to A, also every set is open, तो A closure का इंटीरियर भी क्या हो जाएगा A। लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर nowhere dense है तो उसका इंटीरियर क्या होना चाहिए, empty set होना चाहिए। so this is the reason phi is the only set whose closure is phi and again whose interior is going to be empty। तो याद रखा कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में सिर्फ एम्प्टी सेट ही एक ऐसा सेट है जो कि नोवेयर डेंस है, नोवेयर डेंस है। और डेंस सेट की बात करें तो सिर्फ आर होगा, आई मीन होल स्पेस इटसेल्फ। और काउंटेबल सेट की बात करें, काउंटेबल डेंस आई मीन सेपरेबल, तो सेट एक्स अगर इटसेल्फ काउंटेबल है तो होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट डी में मैंने 3 पॉइंट बताए कि अगर आपको सिर्फ नोवेयर डेंस सेट निकालना तो फाई, डेंस सेट निकालना डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में सेट एक्स इटसेल्फ, और अगर काउंटेबल डेंस सेट निकालना है तो इस सेट एक्स को खुद काउंटेबल होना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट यहां मैंने बताया, इसको आप लोग समझे। और ये एक एग्जांपल है, तो आज रहने देते हैं इतना। डेंस सेट, नोवेयर डेंस सेट को मैंने समझा दिया, और अगर किसी को डाउट है तो आप आज का लेक्चर इसको सुन दोबारा देख लें। कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर कल कुछ मैं स्टैंडर्ड थ्योरम्स आगे, फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल क्या होता है, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस बुक का, बेयर्स कैटेगरी थ्योरम है ना। एवरी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी क्या होता है, और कंप्लीटनेस का ये बहुत, इससे कई प्रूफ भी है आपको, इससे भी प्रूफ हो जाता है कि आर काउंटेबल है कि नहीं, क्यू काउंटेबल है नहीं, आई मीन यूजिंग बेयर्स काउंट कैटेगरी थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के लिए मुझे 2 अब वैसे तो बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी है तो मैंने बेसिक एग्जाम्पल और कुछ जो स्टैंडर्ड थ्योरम है वो मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि 10 मई तक कोर्स कवर करना है। फिर कभी मौका मिला तो मैं इसे डिटेल में आपको, वैसे इस बार मैंने इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कंप्लीटनेस करा दिया है, और अगर कन्वर्जेंस वगैरह करा दिया है। पिछली बार मैंने कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में कराया था। ठीक है, तो सेमेस्टर सिस्टम में टाइम की कमी होती है, तो बहुत कुछ हम शुरू के करा देते हैं, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें, तो यहाँ पे देखो आप कल ऐसा काम करना, फर्स्ट काउंटेबल से क्या समझते हैं, काउंटेबल बेस क्या होता है, फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल स्पेसेस क्या होते हैं, ये करके आएंगे, तो फिर यहाँ से मैं आगे प्रोसीड करूँगा।
ठीक है मुजम्मिल साहब, फिर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। कल देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ओके।